Hello friends, Assalamu alaikum. You are watching Shams Mathematics Academy and I am Shamsuddin, the lecturer of mathematics. लास्ट वीडियो में असां डिस्कस कई थे एक्सरसाइज 6.2 यानी क्लास 11th जे चैप्टर नंबर आहे 6 sequence and series. So now in this video we are going to solve another problem. So start from problem number 3. Problem number 3 में आहे in the following questions three of the five elements a यानी first term, l यानी last term and d is the common difference and n is the number of terms and sn the sum of the terms of an arithmetic progression are given. Find the missing elements यानी जो इससे missing elements है हम वो find कर देंगे. We have given three elements हमें मालूम है. देन हम क्या करेंगे, जो दो मिसिंग होंगे यानी टू जो मिसिंग एलिमेंट्स होंगे वो हम फाइंड कर देंगे. सॉल्यूशन ओके. हियर इन प्रॉब्लम नंबर 1 हियर द मिसिंग टर्म्स आर इट मीन a last term, so this is we can say that tn last term is the missing, so it can be found, and sn yani sum of terms also missing. So we can find these two terms. As we know that the Tn is equal to A plus n minus 1 into D. It's the formula of the general term of the sequence. So here Tn is equal to A का value है A the 3 and n is 9 minus 1 and D is 7. So here this will be T n is equal to 3 plus 8 into 7. So now 8 multiply in 7, so 8 times 7 is 56. So here Tn is equal to 3 plus 56 and 3 plus 56 is the 59. So Tn is equal to 59. So we can say that this is the last term. Okay. So last term हमने मालूम कर दिया. Now we can find अरे ऐसा find करना sum of terms यानी sum of terms जो आए वो आया था जो sn यानी इन्हें sn के हमें find करना थी. Now find the sn. How to find sn? As we know that the formula of the sn, so the formula of sn is equal to fn is equal to, if we have given first and last term, then it will be equal to n upon 2 a plus l. So here a is the first term and l is the last term. Last term हमने मालूम किया है. So this is the last term. Last term is 59. So f n is 9. So here 9 upon 2 and here 3 plus 59. So here this will be s9 is equal to 9 into 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, then this will be 62. So the 2 की टेबल इसमें लग रही है यानी 2 जी टेबल देखा है बाहर जैसा नहीं लगे थी. तो 1 times 2 is 2 and 3 times 2 is 6 and 1 times 2 is 1. So this will be if 9 is equal to 9 and 31 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, then this will be 9 in this is the 9 times 1 is 9 and 3 times 9 is 27. So this is the finally answer. So this is the answer. Okay. So problem number 3rd का पार्ट नंबर 1 हमने कर दिया है और आगे भी हम इसी के कुछ पार्ट कर रहे हैं. कुछ पार्ट्स हम करेंगे इसी प्रॉब्लम से. Now we want to solve some other parts of this. Okay, now part number 3 is there. Part number 3 हम solve कर रहे हैं. Part number 3 में है a is equal to -8 and l is equal to 8 and the last term is equal to 8 but n and number of terms are 5. Okay, so this is the part number 3rd.
इसी प्रॉब्लम का ये पार्ट नंबर थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड को हम सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर थर्ड का रिजल्ट क्या आएगा? We have 3 elements we have given, then now we have to find the remaining 2 elements. So remaining 2 elements are, we can say here first term is given, so remaining 2 elements are D. So common difference we have to find, and F and sum of terms are find, यानी ये हमें फाइंड करना है। तो अच्छो तो हाने ऐसा है ना कि ये सॉल्व करना थी, कॉमन डिफरेंस लाया था क्या करना थी, यानी जनरल टर्म और फार्मूला यूज करना थी। तो जनरल टर्म और फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये a जो है ये लास्ट टर्म है और हम इसी को Tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हियर Tn यानी 8। So 8 is equal to a is minus 8 and n is 5 minus 1 and d we have to find, d हमें find करना है। So we can say, अच्छा ही 8 ते माइनस में ऐड करनी दादा प्लस में दी दो, so it will be 16 is equal to 4 into d। यहाँ से 4 जो है d से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसी को शिफ्ट करेंगे by left hand side and it will be divided, so we can say that 16 over 4 is equal to d। So 1 times 4 is 4 and 4 times 4 is 16, so here 4 is equal to d, we can say that d is equal to 4। okay, so this is the common difference। हमने common difference मालूम कर दिया, यानी इन्हें जो देखो common difference आए वो common difference हम मालूम कैसे है, common difference में जो सांगे चाप दो 4 मिल दो, और अगर हम बाद में ऐसा चाप फाइंड करना दे, we have to find the sum of the terms। here this is the Sn, Sn को हम फाइंड कर देंगे। how to find Sn? Sn यानी हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला यही है कि Sn is equal to n upon 2 into a plus l। so here Sn is equal to n is the 5 upon 2 and a is the minus 8 and last term, so last term is this is the 8, last term is the 8। okay, so here now we can find that Sn is equal to 5 upon 2 into 0 plus minus 8 and plus 8, so this will be cancelled, so now we can say that this will be Sn is equal to 0। okay, so इसी का रिजल्ट जो आया वो ये आ गया कि Sn का जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव 8 है और यहाँ से ये पॉजिटिव 8 है, नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8 में कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी हियर 0 असा कैसा भी मल्टीप्लाई करा सी तब वो सजो जेको नंबर आ वो सजो 0 थींदा। ओके, हलो था कुछ अगते बिन प्रॉब्लम्स थे। Okay friends, now problem number 4, problem number 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपके होमवर्क है, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। जेकरे उन प्रॉब्लम में काई भी मिस्टेक थे त्या का कमी पेशी अचे थी त्या के में डिफिकल्टी आहे तो तमा कमेंट सेक्शन में अचे कमेंट कयो तो इंशाल्लाह वरी वे भी सॉल्व करे मां तमा सां डिस्कस कंदस। ओके, हाणे प्रॉब्लम नंबर 4 आहे। प्रॉब्लम नंबर 4 में चवे दो इफ 1 plus 3 plus 5 up to 8 terms divided by 2 plus 4 plus 6 up to n terms is equal to 0.95, find the n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट दिस इज द सीक्वेंस है, f1 को हम इसी तरीके से लिख सकेंगे 1 plus 3 plus 5 up to n terms। ओके, तो हम इसी का सम कैसे करेंगे? सो हियर द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड n तो n ही होगा। सो यूजिंग द फार्मूला सम ऑफ द टर्म्स, सो सम ऑफ टर्म्स इज n is equal to this will be n1, so here n1 is equal to n upon 2
into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, तारे इन फार्मूले में ऐसा क्या करा दी, ये वैल्यू पुट करा दे Sn1 is equal to n upon 2 into 2 into 1, here n minus 1 and d is the 2. सॉल्व करेंगे अगेन, so S1 is equal to n upon 2, here 2 plus 2n minus 2. so minus 2 में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से प्लस 2 है और दिस इज माइनस 2, so these are be cancelled. here Sn1 is equal to n upon 2 into 2n, 2 में कैंसिल हो जाएगा and n1 is equal to n square. ओके, नाउ डिवाइड कर रही है जो सीरीज वो क्या है, यानी उसी का भी हम सम कर देंगे. नाउ वी कैन सम these all terms here. This is the Sn2, here 2 plus 4 plus 6 up to n terms. Okay, here a first term is a 2 and common difference is 2 and n is equal to n. So Sn2 is equal to here n upon 2 and 2 here 2 minus plus n minus 1 into 2. Okay, so this will be equal to n upon 2, here 4 plus 2n minus 2. So this will be equal to Sn is equal to n upon 2, here 2 plus 2n. Okay, where from here 2 will be the common, then this will be equal to Sn2 is equal to, here this will be n upon 2 and 2 is the common, here n plus 1, so 2 में कैंसिल हो जाएगा, then Sn2 is equal to n into n plus 1. ठीक है, यानी ही असा के वैल्यू कहीं जो मिलो, यानी जेका हेडर के साथ ये सीरीज डिवाइड करे थी उन्हें जो ये सांगे सम ऑफ द टर्म्स आए तारे ऐसा चाकर आते इन्हें कंडीशन में वही करे ऐसा सिंपलीफाई करे यहाँ n जो वैल्यू मालूम करे बिना सी. So here we can say that this will be Sn1 upon Sn2 is equal to n square over n plus 1 is equal to 0.95. So here n will be cancelled and here 1 power of n will be cancelled. So this will be, we can say that n upon n plus 1 is equal to 95 upon 100. यानी ये जो डेसिमल में फ्रैक्शन से हम इसी फ्रैक्शन को यानी कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So this will be by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो 95 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा और 100 क्या है n से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन से दैट हियर 95n plus 95 is equal to here 100 into n. ठीक है, so we can write this as here, यहाँ से 95n प्लस में है. now we can shift this in here in right hand side, then it will be the negative. so we can say that here 100n minus 95n is equal to 95. okay, 100 से हम 95 को सेपरेट करेंगे, then result will be 5. so here this is the 5n is equal to 95. ठीक है, हाने ऐसा क्या करना थी, ये देखो 5 आए थे मल्टीप्लाई तो करे ये वाली डिवाइड करो. this 5 is multiplied in here in right left hand side, then it will be divided in the right hand side. so we can say that here n is equal to 95 upon 5. okay, हम क्या करेंगे, 5 की जो है वो 5 की टेबल 95 पे लग रही है. so 1 time 5 is 5 and 1 time 5 is 5, remains 4 here, this will be 45, then 9 times 5 is 45. so here n is equal to 19.
ठीक है, सो दिस इज द आंसर, यानी यहां से जो हमारा आंसर आया वो क्या होगा 19 होगा। ठीक है, अच्छा हाणे वरी भी तव्हां प्रॉब्लम के समझण की कोशिश कयो। ही प्रॉब्लम आहे मथियां जेका इन सीरीज आ उहा असांजी टोटल जेके आहे ऑड टर्म्स आ ऐं जेके हेठी सीरीज आ टोटल छा आहे असांजी इवन टर्म्स आ, यानी ऑड टर्म्स के इवन टर्म्स डिवाइड करना तो रिजल्ट जेको अचे वो ही तो अचे 0.95। तो नंबर ऑफ टर्म्स असां के मालूम करना है। त पोइ असां छा कयोसे जेका ही मथी सीरीज आ यानी जेका जना न्यूमरेटर में सीरीज आ इन सॼी न्यूमरेटर सीरीज जो असां सम कयोसे त सम असां के मिलियो है n स्क्वायर, यानी जेका असांजी ऑड सीरीज आहे अप टू n ताईं उन जो जेको सम हूंदा वो n स्क्वायर हूंदा। ठीक है, तव्हां छा याद रखंदो जेका असांजी ही असांजी ऑड सीरीज आ हमेशा ऑड सीरीज जो जेको सम हूंदा वो छा हूंदा n स्क्वायर। ऐं उन सां गॾु ही असांजी डिनोमिनेटर में असांजी इवन सीरीज आ त इवन सीरीज जो असां सम कयोसे त इवन सीरीज जो जेको सम मिलियो वो मिलियो असांखे n into n plus 1, यानी इवन सीरीज जो हमेशा जेको असांजो सम हूंदो आहे सम ऑफ द टर्म्स हूंदा वो हूंदा n plus 1, n is the number of terms। here we go to first condition, छा कयो असांजो सम लिखियोसे n जो सम यानी जो सम आहे n स्क्वायर n plus 1, n कैंसिल थी वेंदी n जो पावर कैंसिल थी वेंदो, बाकी जेको रिजल्ट बचंदो वो बचंदो n upon n plus 1। here ही असांजो जेको रिजल्ट आहे हिते 0.95 यानी ये असांजो डेसिमल फ्रैक्शन आहे। डेसिमल फ्रैक्शन के ना कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो 95 upon 100 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी हिन के असां हिन सां क्रॉस कयोसे हिन के असां हिन सां क्रॉस मल्टीप्लाई कयोसी त हिते रिजल्ट छा आयो असांजो 95n plus 95 is equal to 100n, यानी 95 के असां हेॾे शिफ्ट कयोसी त छा थी वेंदो 100 मां असां 95 सब्ट्रैक्ट कंदासीं, बाकी रिजल्ट बचंदो हियर 5 आहे हेॾे 95 यानी 5 हिते मल्टीप्लाई थो करे इन साइड खणी ईंदासीं त डिवाइड कंदो, सो n is equal to 95 upon 5। 5 की टेबल 95 के असांजी 19 टाइम लगे थी त ही थी तो असांजो आंसर n is equal to 19। ठीक है, अॻिते अचो त ॿिया प्रॉब्लम सॉल्व कयूंगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 पे डिस्कस करना थी। प्रॉब्लम नंबर 5 छा तो चवे, प्रॉब्लम नंबर 5 पे चवे दोस्त if the sum of 8 terms यानी 8 टर्म जेको सम आहे sum of 8 terms is 64 and that of 90 terms is 361, find the first term common difference and the sum of 31 terms। यानी इन एक प्रॉब्लम में असां के क्या करना है टे चीजूं फाइंड करनी है। कहिड़ी कहिड़ी चीज फाइंड करनी है? सॉल्यूशन नंबर 1 में d फाइंड करनो आहे ऐं a फाइंड करनो आहे ऐं उन सां गॾु s 31 फाइंड करनो आहे। ठीक है, कंडीशन में छा आहे असांजो जेके 8 टर्म्स आहिनि उन्हनि जो जेको सम आहे वो 60 आहे, यानी हियर असांजो s 8 here we can say that 8 upon 2 8 yani s, so this will be 64 we have given and s 19 is equal to 361। ठीक है, ये असांखे गिवन आहे त पोइ असां फार्मूलो यूज कंदासीं सम ऑफ द टर्म्स वारो। को फार्मूलो आहे n is equal to n upon 2 here 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना थी ऐं इन खे सिंपलीफाई करना थी। सो फर्स्ट में असांजो यूज करना थी यानी हिते n छा आहे असांजो हियर n is equal to 8 ऐं हिते n is equal to 19 आहे त ही थींदो असांजो हियर 64 is equal to 8 upon 2 here 2a plus 8 minus 1 into d। अच्छा सिंपलीफाई करना है 2 की टेबल 4 थे 2 4 टाइम 8 थे 4 टाइम लगे दिया 64 is equal to 4 into 2a
plus 7d. ओके d इक्वल टू 4 आहे ते मल्टीप्लाई वगैरे इन साइड ते खणी ना दे त डिवाइड कर दो यानी 60 के असा 4 सा डिवाइड करना दे तो एक साथ ही तो 64 के 16 थी दो so we can say that 2a plus 7d is equal to 16. This is the equation number 1. ठीक है और सांगा असा विचार करना दे की 18 19 टर्म्स यूज करना दे तो 19 टर्म्स आहे 361 is equal to 19 upon 2 into 2a plus 19 minus 1 into d. Okay, so he thing was 361 is equal to 19 upon 2 here 2a plus 18d. ठीक है तहारे असाइन के हिना मा 2 सा कॉमन करा दी तो पोए जेको रिजल्ट ईंदो वो छा थींदो असांजो 361 19 upon 2 here 2 is common a plus 9d. ठीक है तो 2 2 में कैंसिल थी वेंदो ऐं हिते जेका असांजी 19 आ उहा मल्टीप्लाई थी करे हेॾे खणी था दे तो डिवाइड कंदी so a plus 9d is equal to 361 divided by 19. अच्छा 19 सां असां हिन खे डिवाइड कंदा दे त हिन ते असां जेका टेबल लॻंदी उहा 90 टाइम लॻंदी so a plus 9d is equal to 19. This is the equation number 2. अच्छा इक्वेशन 2 आहे इक्वेशन 1 हाणे असां छा कंदा दे हिन इक्वेशन 2 ऐं इक्वेशन 1 खे असां सॉल्व कंदा दे त असां खे d ऐं a जो जेको आहे सो रिजल्ट मिली वेंदो. अच्छा हिते असां जो 2a आ ऐं हिते असां जो सिंपली 2 आ त पोइ असां छा कंदासीं पुट ही जेका इक्वेशन 2 आहे इन सां असां 2 मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं इन मां छा कंदासीं असां इक्वेशन नंबर 1 खे सबट्रैक्ट कंदासीं मल्टीप्लाइड 2 by equation 2 then equation 1 will subtract from it અને का बाद में ऐसा छा करावे हेनवा इक्वेशन 1 के सबट्रैक्ट कराते. ठीक है इने साथ 2 मल्टीप्लाई कराते तो ये थी नो 2a plus 18d is equal to 38. ठीक है इनमें असां इक्वेशन सबट्रैक्ट करा दी ये थी नो साथ 2a plus 7d is equal to 16. अच्छा ये कैंसिल थी वेंदो ऐं हिते असां 7 इन मां सबट्रैक्ट करा दे 18 मां बाकी छा बचंदो असां जो 11d is equal to ऐं हिते ही थींदो 2 बचंदो ऐं हियर 22. अच्छा 11 हिते मल्टीप्लाई थो करे ओॾे वञी डिवाइड कंदो सो हियर d is equal to 22 upon 11. अच्छा 11 नी 22 ते असांजी 1 टाइम 2 टाइम टेबल लॻंदी आहे so this will be d is equal to 2 यानी d जो जेको रिजल्ट मिलियो वो छा आहे असांजो 2 आहे. हाणे इहो वैल्यू असां कंहिं बि हिकड़ी इक्वेशन में पुट कंदासीं त असांखे जेको आहे सो a जो रिजल्ट मिली वेंदो so this will be put d in equation 2. इक्वेशन 2 में असां d जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कंदासीं त ही थींदो a plus 9 into 2 is equal to 19. so he थींदो असांजो a plus 18 is equal to 19. अच्छा 18 हिते पॉजिटिव आहे ओॾे खणी वेंदासीं छा थी वेंदो नेगेटिव थी वेंदो so here a is equal to 19 minus 18 so here a is equal to 1. ठीक है हाणे असांखे फर्स्ट टर्म पे मिली वियो ऐं कॉमन डिफरेंस पे मिली वियो त बाद में असांखे छा फाइंड करणो आहे we have to find the sum of 31 terms. so 31 terms जो सम मालूम करने लाए s n वाला फार्मूला यानी 31 n is 31 upon
2 and 2a is a 1 plus 31 minus 1 into d is a 2. ठीक है, ये सब फार्मूले में यूज करा दी तो रिजल्ट ऐसा क्या बना दो f31 is equal to 31 upon 2 into here 2 plus 30 into 2. अच्छा 30 से 2 मल्टीप्लाई करा दे तो ये चाहते भी दो जब ऐसा 30 से 2 पे मल्टीप्लाई करा दे तो ये समझो 60 भी दो. So here is 31 is equal to 31 upon 2 into 62 यानी कि 60 थी तो 2 की ऐड करना है 62 थी भी दो. अच्छा इन्हें देखता नहीं टेबल बना दे 1 टाइम 2 is 2 and 3 टाइम 2 is 6 and 1 टाइम is 2 is 2. So f 31 is equal to 31 into 31. ठीक है, 31 के साथ 31 से मल्टीप्लाई करना दी the result is 961. So this will be f31 is equal to 961. So this is the answer. ठीक है, तो ये था 4 चीजें आंसर अचीव. ठीक है, वरी भी एक रे जो दी प्रॉब्लम रिपीट करे सकोगा पर इजी सॉल्व के बाद आंसर भाई समझी सकोगा. यू कैन फाइंड यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, आज अना कुछ वधी के प्रॉब्लम्स से डिस्कस करूंगा. ओके फ्रेंड्स, आने प्रॉब्लम नंबर 6 एना सागी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 6 एंड ये समझे ना लेक्चर जो लास्ट प्रॉब्लम आहे इन्हें वीडियो में समझी लास्ट प्रॉब्लम आ एना का बाद में वाली नेक्स्ट डे के प्रॉब्लम्स होगा वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह सुबह में अपलोड करेंगे. सॉल्यूशन ओके हियर प्रॉब्लम में चले तो फाइंड द सम टू 20 terms of an arithmetic progression whose fourth term is 7 and seventh term is 13. यानी ऐसा या 20 terms के ऐड करवा पर चले तो देखो जो फोर्थ टर्म आ वो सन 7 आ एंड सेवेंथ टर्म ने को वो सन 13 आ. यानी इनमें ऐसा के कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स असा के मिले पर कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म असा मालूम करा दी. सॉल्यूशन दिला फोर्थ टर्म यानी नंबर जनरल टर्म देखो होगा वो ही होगा a plus n minus 1 into d. ठीक है, here fourth term यानी t4 is equal to 7. ठीक है, तो कोई चाकना देता t4 is equal to a plus 4 minus 1 into d. यानी t4 असान शायद 7 आ so 7 is equal to a plus 3d. यानी कैसा ये लिख सकूंगा a plus 3d is equal to 7. This is the equation number 1. ठीक है, और ऐसा अगर ऐसा चाहता जो सेवेंथ टर्म देखा वो सामने 13 है यानी सेवेंथ टर्म here seventh term यानी t7 is equal to a plus 7 minus 1 into d. So here this will be t7 असान चाहे 13 given up. So we can say that 13 is equal to a plus 6d. So here a plus 6d is equal to 13. This is the equation number 2. ठीक है, हमने क्या करा दी इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्व करा दी तो रिजल्ट असान के d जो मिली भी नो. सो वी कैन से subtract equation 2 from equation 1. यानी इक्वेशन 1 जगह ये इक्वेशन है ना मासा इक्वेशन 2 के सबट्रैक्ट करा दी तो ये थी तो सामने a plus 3d is equal to 7. Here a plus 6d is equal to 13. सब्ट्रैक्शन करा दे तो ही a में कैंसिल थी भी तो आ हिते मिलन वसा के -3d is equal to -6. ठीक है, यानी 7 में आसान 13 के सब्ट्रैक्ट करना है तो -6 ही मिल दो. सो d is equal to -6 over -3. minus into minus plus 1 time 3 is 1 and 2 time 3 is 6. so d is equal to 2. अच्छा d जो वैल्यू मिली हो ताने यो सा d जो वैल्यू के भी इक्वेशन में पुट करना दी ता के a यानी फर्स्ट टर्म जो वैल्यू मिली हो
ठीक है, असां हिनखे पुट था कयूं फर्स्ट इक्वेशन में थींदो a plus 3 into 2 is equal to 7. So a plus this will be 6 is equal to 7. Here a is equal to 7 minus 6, then a is equal to 1. ठीक है, हाणे असांखे फर्स्ट टर्म यानी a जो वैल्यू असांखे मिली वियो। हाणे छा कंदासीं, असांखे 20 टर्म जो सम मालूम करणो आहे, यानी a 20 is equal to 20 upon 2 here 2a की जगह ते 1 प्लस n यानी 20 आहे ऐं d असांजो 2 आहे। ठीक आहे, सिंपलीफाई करा दी असां हिनखे त a 20 is equal to 2 जी टेबल हिन ते 20 ते 10 टाइम लगंदी, दिस इज द 2 प्लस 19 into 2। ठीक आहे, त ही थींदो असांजो 10 into 2 plus 38। ठीक है, so a20 is equal to 100 into 40। अच्छा 40 and 10 के असां पाण में मल्टीप्लाई करा दी त रिजल्ट थींदो असांजो 400। so a20 यानी sum of 20 terms is 400। so this is the answer। ठीक है, हिन प्रॉब्लम खे असां वरी भी रिपीट करे सघूं था त हिन प्रॉब्लम खे सॉल्व कीअं कयो आहे। इन प्रॉब्लम में छा है, असांखे 4th टर्म मिलेला ऐं 7th टर्म मिलेला। ठीक है, जॾहिं त असांखे इन जो सम मालूम करणो आहे 20 टर्म्स जो, त पोइ पहले असां छा कंदासीं, कॉमन डिफरेंस ऐं फर्स्ट टर्म असां मालूम कंदासीं। सो 4 टर्म असांजो ही आहे जनरल टर्म में, या दिस इज द जनरल टर्म आहे। हिन जनरल टर्म वारे फार्मूले में असां वयासीं, 4 टर्म जेको आहे 4th टर्म असांजो 7 आहे, त हिते छा आहे a इज द 4 यानी a plus 4 minus 1। त असां 4 मां 1 सबट्रैक्ट कयो 3 बचो, 7 is equal to a plus 3d। ठीक है, हिनखे असां छा कयोसीं, इक्वेशन नंबर 1 जो नालो ॾिनोसीं, और असां बाद में छा आहे 7th टर्म जेको आहे उहो असांजो 13 आहे। त 7th टर्म असां छा कयोसीं, त सही आहे n, so a plus 7 minus 1 into d, so 13। 7th टर्म असां 13 आहे, मथे गिवन आहे 7th टर्म is 13। so here 13 is equal to a plus 6d, so a plus 6d is equal to 13। यानी हिन इक्वेशन के असां हिन फॉर्म में भी लिखी सघूं था ऐं हिन खे असां चवंदा आहियूं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हाणे छा कयोसीं असां इक्वेशन 1 मां इक्वेशन 2 के इक्वेशन 2 मां 2 खे सबट्रैक्ट कयोसीं, या इक्वेशन 2 जेका इक्वेशन 1 मां सबट्रैक्ट कईसीं, तो फाइनल रिजल्ट मिलियो 3 3d is equal to -6। सो हिते असां जो 3d ते मल्टीप्लाई तो करे हेॾे वञी 3 3 नथा डिवाइड करो, सो d is equal to 2 मिलियो ऐं a जो वैल्यू मालूम करने लाइ यानी ही पुट कयो से 2 असां कई इक्वेशन नंबर 1 में, त ही थींदो 6 6 से पालन का आगे छा थींदो नेगेटिव थींदो, 7 मां 6 सबट्रैक्ट कयो से बाकी 1 बचो। हाणे असांखे फर्स्ट टर्म मिली वियो ऐं कॉमन डिफरेंस बि मिली वियो, त हिते असां छा कयो से ही फार्मूलो यूज कयो आहे, f n is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, यानी ही फार्मूला यूज कियो असां हिते डायरेक्ट, जाते करे हिते असांखे n गिवन आहे, n असांखे 20 गिवन आहे, a असां फाइंड कयोसीं वो 1 आहे ऐं d असां फाइंड कयोसीं वो छा आहे असांजो 2 आहे। ठीक है, यानी असां 20 टर्म्स के ऐड कयोसीं त जेको रिजल्ट आहे वो असांजो चाहे 400 आहे ऐं ये असांजो आंसर आहे। ठीक है, अच्छा जेकॾहिं तव्हांखे काई बि इन प्रॉब्लम में कंफ्यूजन थिए थी, किथे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, त तव्हां कमेंट बॉक्स में अचो, कमेंट कयो ऐं तव्हां WhatsApp ते भी मूंखे जॉइन करे सघो था, Facebook ते जॉइन करे सघो था। जेकॾहिं काई बि तव्हांखे डिफिकल्टी आहे, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।